Hi, good evening, all. Welcome to the fourth session of the Board Preparation Strategy series by Guru Q. For many more conventional subjects, the exam is going to start from 26th of February. But in both the cases, we are pretty close to the D-Day. Before we start this session, I would just like to tell you that we still have a lot of time. The students who are pretty anxious on how do we go about it, there is less time remaining. So every effort counts. So never think that you have less time. Just keep on preparing and persevering. Today we are going to discuss the revision strategy for the most important or most talked about a subject, which is maths. So, but at the same time, this is one of the most dreaded subject, but at the same time, the most scoring subject out of all the board exams, board subjects. We have with us Mr. Jaiprakash Sinha, who would be joining us just in a minute. And then he has more than 15 years of experience teaching maths to students, especially grade 10 and grade 12 students. He's the best person who can guide you on how to get the maximum out of your board exams. Welcome, sir. Thank you so much for joining us. Hello. Hello, sir. So, sir, before we start the session, can you just introduce yourself to the audience, like regarding your teaching experience? Myself is JP Sinha, Jaiprakash Sinha. I am B in Mechanical Engineering plus postgraduate diploma in Information Technology. I am having more than 15 years of teaching experience. So I am teaching all the students class 10, 11, 12, physics and mathematics. This is my subject. Okay. Yes, so thank you so much for giving your time, sir. I know that this time is really busy for the students and the teachers because they are in the last leg of the preparation. The maths exam is on 21st March. We still have lot of time, like not lot of time, but the students who are very anxious and especially the students fear maths a lot. So what are the most important sections, or what are the most important units that you would suggest the students that please don't miss revising them, or please don't miss these sections at all? correct. So I will speak in Hindi plus English so that it will be Yes, beneficial sir. for So that is most of okay, the sir, students. because mixed audience है, Hindi English दोनों समझती Yeah, है, so correct, that is correct. okay. So I will come to the section part next. But first of all, I will tell you this board exam is like any other exam. It is not like that it is some special exam. So मेरा ये कहना है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है. आपने साल भर में बहुत अच्छी तैयारी की है और अभी भी आप कर रहे हैं. तो ये 100% श्योर होकर चलिए कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है. इसमें आप जितना चाहे उतना स्कोर कर सकते हैं, 100% भी स्कोर कर सकते हैं. इसमें दो तरह की स्ट्रेटेजी काम आती है. मैं जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, दो स्ट्रेटेजी आपको काम में लाना है. एक एग्जाम से जस्ट बिफोर 1 डे तक, दैट इज योर रिवीजन स्ट्रेटेजी. उसके बाद एग्जाम के दिन आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और होगी. सो जब एग्जाम के एक दिन पहले तक आपकी जो तैयारी करनी है वो इस तरह से तैयारी करनी है कि आप एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना. आपकी तैयारी इस तरह से करनी है कि आपकी तैयारी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और हर टॉपिक में, हर चैप्टर में आप अच्छे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए. लेकिन जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, क्योंकि आपको उस दिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि ये भी जैसे बाकी सब एग्जाम में अभी तक आप क्लियर हो रहे हैं, एग्जाम में क्लियर होने का आपको बहुत सारा प्रैक्टिस हो चुका है. 2 प्रीलिम्स हो चुके हैं, उसके बाद भी आपने कुछ पेपर्स जो है प्रैक्टिस किए हैं. सो ये मान के चलिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है. लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है कि हमको 80 में से 80 मार्क्स ही लाने हैं. ये उस दिन के लिए भूल जाना है. जिस तरह से हम
कोई किसी भी फाइनल मैच के पहले बहुत सारा प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, प्रैक्टिस मैच को एंजॉय करते हैं। जिस दिन फाइनल्स होता है उस दिन ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। लेकिन हम गेम में अच्छा तभी कर पाएंगे जब हम अच्छा खेलेंगे। जब हम अच्छा स्कोर करने का टारगेट लेके चलेंगे तो वो आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करेगा। तो हमको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपकी हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम अच्छा खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। और वो 3 घंटे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 3 घंटे के दरमियान जो हम परफॉर्म करेंगे, जो कूल काम एंड कॉन्फिडेंट माइंड से जो हम आंसर करेंगे, वो हमारे नंबर्स में दिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। एकदम जैसे अदर्स एग्जाम से वैसे ये भी एग्जाम है। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपने एग्जाम पेपर देना चालू किया, आप शुरू से मान के चल रहे हैं कि हमको 80 स्कोर करना है, 75 स्कोर करना है, लेकिन मान लीजिए शुरू के 1-2 सवाल गलत हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो नहीं करना है, आपको अच्छा खेलना है, नंबर आपको अपने आप मिलेंगे। दूसरी बात, ये बोर्ड का क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान रहेगा, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले हैं। तो ये सारे बच्चों को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ही चैलेंजिंग हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप आसानी से हंसते खेलते कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसमें दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमने 1 साल मेहनत की है, उस 1 साल का जो मेहनत की है, जो हमने किया है, वो हार्डवर्क आपका ये 3 घंटे के प्रेजेंटेशन में आपको दिखने वाला है। तो ये हम लिख के हम एग्जाम दे रहे हैं, तो हम जो पेपर में जो प्रेजेंट करेंगे वो एग्जामिनर को दिखेगा। तो हमको ऐसा करना है कि जब पेपर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट जो 15 मिनट्स है, जो रीडिंग टाइम जिसको बोलते हैं, उसमें बच्चे, मैं सजेस्ट करता हूं कि आरएमएस टेक्निक को अपनाएं। आरएमएस टेक्निक मतलब रीड, मार्क एंड सॉल्व। जो फर्स्ट 15 मिनट्स होंगे, रीड, मार्क एंड सॉल्व, जो फर्स्ट 15 मिनट्स होंगे उसमें आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है। और रीड करने से आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, इजीली कर सकता हूं, कई बार हमने किया है। इस जब कॉन्फिडेंट है तो उसमें टिक लगा दीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसको लगेगा हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं कर तो सकता हूं, लेकिन इट विल टेक टाइम, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है उसमें, तो उसमें आप सर्कल मार्क कर दीजिए कि करूंगा लेकिन बाद में देखूंगा। और कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसमें क्रॉस लगा दीजिए। ये आप रीडिंग टाइम के अंदर ही आप उसको डिसाइड कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा बाद में करना है, और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। और इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस, जो कुछ सेक्शंस हैं उसमें आपको ऑप्शंस भी हैं, तो उन ऑप्शंस में और भी रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसका और में रहेगा कि ये आइदर दिस और दैट। तो उसमें आप कौन सा पार्ट करने वाले हैं वो आप पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर और करने वाले हैं तो और में टिक लगा दीजिए। ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो शुरू के 5-6 पेज जो हैं वो पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा कोशिश करिए कि उसमें जरा भी कट मार्क्स ना हो, क्योंकि वो आपको एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर डालेगा। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जैसा कि बोला जाता है। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि 4-5 पेज तक आप कोई कट मार्क न करें। तो उस शुरुआत में कभी कभी बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम कौन से सेक्शन से शुरुआत करें। 5 सेक्शन आने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, 1 मार्क ईच, एक मार्क के रहेंगे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स के। एंड सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 मार्क्स के। इस तरह से टोटल स्कोर जो है आपका 80 मार्क्स होता है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी आप आरएमएस टेक्निक से जब भी आप क्वेश्चंस को टिक करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन में आप सबसे अच्छे हैं, कौन सा सेक्शन में आप शुरुआत कर सकते हैं बिना कट किए हुए। आप 4-5 पेज आप आराम से कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप अगले क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो फिर इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करिए। और मैथमेटिक्स में रफ वर्क भी करना होता है। रफ वर्क करने के लिए आप जो है सबसे पीछे का बैक पेज जो है उस पे बड़े बड़े अक्षरों में रफ वर्क लिख दीजिए कैपिटल लेटर में, और उसमें अपना रफ वर्क कीजिए और लास्ट में उसको कट कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि ये रफ वर्क है, उसको इवेल्युएट करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपना हर जो भी आपको ये मान के चलना है कि एग्जामिनर को मैथमेटिक्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है। एग्जामिनर्स को मैथमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसलिए आपको उनको हर स्टेप समझाना है। जैसे हम अपने से जूनियर स्टूडेंट को समझाते हैं, तो आप हर स्टेप को आपको समझाएंगे। जैसे आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इस तरह की जो आइडेंटिटीज हैं जो आप बार बार यूज करने वाले हैं, उसको आप एक बॉक्स में कवर कर दीजिए, बॉक्स में आप घेर दीजिए। इस तरह से आप आगे बढ़ते चलिए, हर स्टेप को आप मेंशन करिए। और जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आंसर को भी एक ब्लॉक बना के एक स्क्वायर में आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को एक बार तो आपने शुरू में रीड करते समय पढ़ा, जब 15 मिनट टाइम मिला उसको, जब भी सॉल्व करने जाएंगे तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है और एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है, ताकि आप कभी कभी यूनिट्स का उसमें चक्कर होता है। आपको जो दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और सरफेस एरिया निकालने के लिए या वॉल्यूम निकालने के लिए मीटर क्यूब में वॉल्यूम बताइए, और सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। आपने पूरा सॉल्व किया सेंटीमीटर में आंसर कर दिया, गलत हो जाएगा। तो आप जब पढ़ लेंगे तो और उस यूनिट को मार्क कर दीजिए, भाई ये यूनिट में हमको आंसर देना है। तो इस वजह से आपका मार्क्स कट नहीं होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है और ये जब भी बच्चे कभी कभी ये कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सेक्शन से शुरू करें, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन डी है वो 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन से 5 मार्क्स के, मतलब 20 मार्क्स का है। तो कुछ बच्चे वहां शुरुआत करेंगे। मेरा ये सजेशन है कि आप उस सेक्शन से शुरुआत करिए। ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है कि आपको जो सेक्शन अच्छी तरह आता है, जिस सेक्शन में आपने रीडिंग के टाइम में ज्यादा टिक लगाए हुए हैं कि ये सारा हमको कॉन्फिडेंट है, उस सेक्शन को आप पहले करिए, और वो सेक्शन फिनिश करने के बाद में ऐसे ही आप एक एक सेक्शन करके आगे बढ़ते जाइए। और ये एक गलत कंसेप्शन है कि हैंडराइटिंग मैथमेटिक्स में मैटर नहीं करता है। हैंडराइटिंग का भी मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा रोल होता है। तो भले कम लिखना है, ज्यादा एसएसटी जैसा नहीं लिखना है, तो आप अपने हैंडराइटिंग को भी प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले अच्छा लिखें, ताकि एग्जामिनर आपका पेपर देख के खुश हो जाए। मैंने वो मार्क्स उसको कट करने का स्कोप न हो। और जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो हर क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हुई रहती है, उसको आप गिवन करके दीजिए। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चंस, दीज थिंग्स आर गिवन, एंड व्हाट इज टू बी फाइंड। सो गिवन एंड टू फाइंड आप हर क्वेश्चन के बिगिनिंग में आप लिख दीजिए। जब आप आंसर करने जाएंगे तो लिखिए कि ये क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है, इस यूनिट में दिया हुआ है। और जब भी आंसर करेंगे तो आंसर में आप लिखिए कि टू बी फाउंड इन मीटर क्यूब विथ यूनिट लिखिए। तो इसलिए आपको यूनिट्स में भी गलती नहीं होगी, और वो हर क्वेश्चन को 1 by 1 करते चलिए। फिर दूसरा सलाह ये है कि अगर आप, जैसे कभी कभी होता है कि स्लो आंसर करते हैं, तो जब भी अगर आपका स्पीड स्लो है तो पहले एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी प्रैक्टिस करिए, अभी प्रीलिम्स हुए होंगे, और जहां तक मेरा मानना है कि पूरा पेपर जो है 180 मिनट्स का है, 3 आवर्स का। करेक्ट। अगर आप एक नॉर्मल स्पीड से लिखेंगे तो 150 to 160 मिनट्स में आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे।
और बाद के 15-20 मिनट्स आप रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हैं। वो जो आपके जो आंसर बताए हमने उसको आप बॉक्स में करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपके जो आइडेंटिटी यूज किया है उनको उनको बॉक्स में करिए। यूनिट्स वगैरह चेक कर लीजिए, बराबर आंसर किया है कि नहीं किया है, ये सब करने के लिए करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर स्लो है तो उसमें जो अगर आपको आता है लेकिन आपकी स्पीड स्लो है तो जो हायर मार्क्स के क्वेश्चन है उनको पहले करिए। कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूटेगा तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का क्वेश्चन छूटा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो अगर किसी बच्चे की स्पीड स्लो है, पहले तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप स्पीड को बढ़ाइए। लेकिन एग्जाम है, एग्जाम में जैसे बोलते हैं कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में लिखना है। द रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड। और उस दिन में आपका टेम्परामेंट कैसा है वो सब कुछ पे मैटर करता है। अगर किसी वजह से आप स्लो है लेकिन अगर आपको बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं, अच्छी तरह आते हैं, तो पहले उनको करें ताकि वो 5 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं। और अगर छोटे वाले कभी 1-2 छूट भी जाते हैं तो उससे आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अभी मेरी तरफ से तो ये बताना था, और कुछ आप पूछिए तो मैं बताता हूँ। सेक्शंस के बारे में बताऊंगा मैं आपको। करेक्ट। सो जैसे आपने बोला कि जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, स्टार्ट विद दैट सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 3 मार्क्स के में 5 क्वेश्चन, 6 मार्क्स वाले 6 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले में मेरे को 4-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक में मेरे को डाउट है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि मैं उस क्वेश्चन के लिए वहीं पर ही जगह छोड़ दूं और आगे के सेक्शन के लिए मूव कर जाऊं, कि बाद में पीछे से अपेंड करके कर दूं, कि नहीं जगह छोड़? देखिए, अगर मान लीजिए कि ये 5 क्वेश्चंस वाले 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के। अगर उसमें से 3 क्वेश्चन आपको आता है तो 3 क्वेश्चन आप बना लीजिए, और चौथा क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप उसको बाद में अटेम्प्ट करने के लिए स्पेस आप वहीं पर छोड़ दीजिए। एक आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना करते करते आपको एक पेज नहीं, आप 2 पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 2 पेज लग सकते हैं। तो वो 2 पेज आप छोड़ के फिर आगे बढ़ जाइए। और कभी भी एक सेक्शन के अंदर भी अगर जब भी आप एक क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2-4 लाइन का स्पेस दीजिए। 2-4 लाइन का स्पेस देने के बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिए। एग्जामिनर को देख के लगना चाहिए कि बच्चे ने मेहनत किया है, सब कुछ इतना अच्छा लिखा है कि कहीं भी मार्क्स कट करने की गुंजाइश नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप यस योर एग्जाम इज मोर ऑफ योर प्रेजेंटेशन, लाइक जैसे आपने बोला कि एक दिन पहले तक जो पढ़ लिया वो अब मैटर नहीं करेगा। एग्जाम वाले दिन आपने क्या लिखा हुआ है अपनी शीट पर, वही बस आपको मार्क्स दिलाने वाला है। और आपने कितनी भी अच्छी तैयारी कर ली है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कोई क्वेश्चन क्या होता है, आपने एनसीईआरटी में सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, आपको लगता है ये क्वेश्चन तुमने कई बार किया है और आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं। मैंने वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में उसने हाइट मांगा है और इस क्वेश्चन में आपसे रेडियस मांग रहा है, बाकी सब उसने दिया हुआ है, तो आप गलत कर जाएंगे। फिर पूरा गलत करने के बाद में फिर आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप पूरा क्वेश्चन कम से कम शुरू में बताया कि आप 2 बार पढ़ लीजिए, कंफर्म हो जाइए किस यूनिट में मांग रहा है, क्या मांग रहा है, तब आंसर करिए। जैसा मैंने बताया, आपको मोर देन इनफ टाइम है आपके पास। सर, और कितना ज्यादा मतलब वेरेवर फिगर्स आर रिक्वायर्ड, या फिर हमें कुछ रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर आप मार्किंग या जो हम नेमिंग करते हैं उसके लिए कोई पॉइंट्स हैं आपके पास सजेस्ट करने को? क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ड्रॉ नीट फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो जहां भी जरूरत है आपको नीट फिगर बनाना है। पेंसिल वगैरह रखिए अपने पास ताकि इरेज भी कर सके। पेन से अगर आपने मान लीजिए सर्कल बनाया, रफ बनाया, गलत हो गया तो फिर उसको कैसे कट करेंगे। तो आपके पास सारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रहेगा ही, साफ साफ बनाइए। और पाई का वैल्यू जो है 22/7 लीजिए। अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो आप पाई का वैल्यू 22/7 ही लीजिए। ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में भी लिखा रहता है।
तो आप उसको 22/7 लेके ही बनाइए। ठीक है। और सर जैसे रिविजन टाइम है, जैसे 15 आपने बोला कि 150-160 मिनट्स नॉर्मली बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा। रिविजन जब हम करते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए कि दीज आर द थिंग्स जो मैं रिविजन करते टाइम देखूंगा, सो दैट अगर कुछ भी इधर उधर हुआ हो, कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो दे कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई कि जो भी एटलीस्ट करा है वो पूरा ढंग से सबमिट कर रहे हैं। देखिए अभी क्या है, अभी हर इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं। अभी अभी तक हर इंडिविजुअल को पता चल गया होगा कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन कौन से चैप्टर में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सवाल इजीली बना लेता हूँ, विद इन टाइम बना लेता हूँ, और कौन कौन से क्वेश्चंस करने में मुझे टाइम लग रहा है। तो ये अभी टाइम है। अभी देखिए आपका 21 मार्च को एग्जाम है मैथमेटिक्स का। यू आर हैविंग मोर देन 1 मंथ इन योर हैंड। करेक्ट। सो जो आपके अभी अभी टाइम है यही मैंने 10 दिन के अंदर में, विद इन 10 डेज ओनली, आफ्टर दैट नहीं। ये 10 डेज के अंदर में आपका जो जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है वो चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से बनाएं, और उसमें जब भी आप एक तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने लगेंगे तो आपकी स्पीड वैसे ही अच्छी हो जाएगी और कहीं आप अटकेंगे नहीं। और अभी से कोई भी कैलकुलेशंस करने के लिए आपको कैलकुलेटर या मोबाइल का यूज नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कैलकुलेटर से अलाउड नहीं है। तो आपको कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा ना लगे, इसके लिए प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए। हो सकता है अभी तक बच्चे कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, लेकिन अब आपको बंद कर देनी है। और जो भी कुछ आपका जो है फॉर्मूला आपने लिखा उसको आपने खुद कैलकुलेट करना है और एंड पॉइंट तक लेके आना है, आंसर तक। तो ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम के दिन भी बनी रहेगी। ये ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे बच्चे जो रिवीजन कर रहे हैं उसके अपार्ट आप कोई पर्टिकुलर सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मटेरियल या कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल है जो आप सजेस्ट करते हैं कि बच्चे जरूर करें? जो मैंने आपको बताया कि आपका क्वेश्चन 150 to 160 मिनट्स में हो जाएगा, किसी किसी बच्चे का 170 मिनट्स में हो जाएगा, 175 मिनट्स में हो जाएगा, और ये हो जाएगा। कैसे हम इसको चेक करेंगे? हमारे पास प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उसी टाइम स्लॉट में, जैसे आपका एग्जाम 10 बजे शुरू होने वाला है या 10:30 10:30 शुरू होने वाला है, 10:30 से 1:30 जो भी 3 आवर्स का पेपर है, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप उसी टाइम स्लॉट में अपने घर में अभी एटलीस्ट वीक में 2 पेपर मैथमेटिक्स का आप करें सेम टाइम स्लॉट में। क्योंकि इस तरह से क्या आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा, एक रूटीन में आ जाएगा, तो आपका माइंड उस समय एक्टिव रहेगा उस पीरियड में। ये नहीं कि रात में बना रहे हैं पेपर, रात में भी बनाएंगे लेकिन उतना फायदा नहीं होगा। जो पेपर का टाइमिंग है, जैसे आप करते हैं, आप स्टडी रूम में अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए ब्रेकफास्ट वगैरह करके कि भाई अभी मैं 3 घंटे का पेपर देने जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत किया जाए। 3 घंटे के बाद आप मुझे नॉक कर दीजिएगा एग्जैक्टली इतने बजे जो भी है। तो जो आपका बोर्ड का टाइम टेबल है उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए वीक में 2 पेपर आप अभी से कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर के क्वेश्चन आप करिए, आप खुद पाएंगे। हो सकता है कि जो मैं आपको 160 बोल रहा हूं, हो सकता है आपको ये 180 190 मिनट्स भी लग जाए, लेकिन 2-4 पेपर करने के बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टाइम कम हो जाएगा। और आपको ये पेपर देते समय आपको अपनी कमजोरी और अपना स्ट्रेंथ भी पता चलेगा कि कौन सा सवाल मैं नहीं कर पा रहा हूं, कौन सा सवाल मैं कर पा रहा हूं, कहां मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं। उस तरह से आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। रिवीजन का मतलब ये टाइम यही है, प्रिपरेशन टाइम है ये। तो अभी जितना हार्डवर्क करना है कर लीजिए। तो एनसीईआरटी तो मेरे ख्याल से सारे ही बच्चे करते हैं स्कूल में। मोस्टली स्कूल्स एनसीईआरटी को ही बेस बनाकर दे cover the entire curriculum, but NCERT के अलावा are there any books which you suggest to the students की उनको इस पीरियड में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर एनसीईआरटी तो आपको मस्ट है, करना ही है। अगर अभी तक अगर हो सकता है कुछ बच्चे एनसीईआरटी के अलावा कुछ बुक्स लेके प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो नो डाउट वो करेंगे, लेकिन अभी से कुछ नया बुक खरीद के अभी करने का टाइम नहीं है।
हम्म। अभी अभी कुछ भी नहीं। अभी जो आप अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है, आपने थोड़े बहुत उसमें से किए हुए हैं, करते रहे हैं, तो जरूर करिए कि ए गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो एनसीईआरटी को फॉलो करिए और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। और अगर अगर कुछ, जिसे मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके सिटी के दूसरे स्कूल में पढ़ता है, उसके प्रीलिम्स के पेपर भी आप ले सकते हैं, अपना पेपर आप उसको शेयर कर सकते हैं हम्म। अगर आपको ज्यादा पेपर्स बनाने हैं तो। और एनसीईआरटी के साइट पे भी कुछ पेपर, सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। मुझे लगता है हम्म। मोर देन एनफ मटेरियल है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। हम्म। सो लाइक स्पेशली एट दिस पॉइंट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि इस समय बच्चे बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये वाली बुक ना अभी बताइए यार, मैं ये वाली बुक कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी है, तू भी कर ले, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस बुक। सो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमने जितना करा है शायद वो इनफ नहीं है, और उस चक्कर में मतलब दे कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन बुक टू अनदर बुक rather than focusing on the preparation. नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। Hmm. It is Correct. always Correct. better. It is always better to read one book 10 times Hmm. than 10 books one time each. क्योंकि Correct. जब Correct. भी आप अगर एक बुक अगर 10 बार पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन इस तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाती है। Hmm. और ये मैथमेटिक्स जो है, ये फंडामेंटल्स जो है, आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो होंगे ही और हो भी जाएंगे। जो बार बार Hmm. प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Correct. और Hmm. एनसीईआरटी बुक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। अगर एनसीईआरटी के बुक के अपने कॉन्सेप्ट्स अगर आपने ग्रैस्प कर लिए ना, तो आप दूसरे बुक से कोई भी सवाल बना सकते हैं। क्योंकि Hmm. ये कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये Hmm. सारे बच्चों को ध्यान में रख के पेपर बनाया जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी का जो बुक है वो मोर देन सफिशिएंट है। Okay, sir. Now when we come to the revision part, ये सब एग्जाम का पार्ट है, लेकिन जब हम रिविजन के पार्ट की बात करते हैं तो फिर अब हमारे पास 5 हफ्ते टाइप बच्चे हैं, बच्चों के पास मैथ्स के एग्जाम के लिए, करेक्ट। जिसमें बीच में उनके बाकी एग्जाम्स भी आने शुरू होंगे। स्पेशली वंस द एग्जाम विल बी स्टार्टिंग 26 से, तो उसके एक हफ्ते पहले तो बच्चे उसी पर ही फोकस करेगा। लेकिन अभी जो लास्ट के डेज हैं, सो व्हाट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि मैथ्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ये वाले टाइम पर। तो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बहुत स्ट्रांगली बच्चों को सजेस्ट करते हो कि इनको पक्का करो या इनको थरो करो? करेक्ट। तो इसके बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि सबसे बड़ी बात है कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो मैथमेटिक्स में अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। जैसे मैंने सजेस्ट किया कि वीक में आप 2 पेपर बना लें 3-3 घंटे के, या तो पास्ट ईयर के पेपर हैं या किसी आपके फ्रेंड के प्रीलिम्स के पेपर हैं, वो बना लिए। लेकिन आप 2 घंटे आप ये मान के चलिए कि एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स फॉर 2 आवर्स। अभी जो टाइम है, अभी जो 24 आवर्स का डे होता है, तो एटलीस्ट 2 घंटा मिनिमम तो आपको मैथमेटिक्स के लिए ईच डे आपको देना है, प्रैक्टिस करना है। जो जो आपने किया, नए कुछ सवाल बनाने हैं या जो भी है, जो पेपर बना लिया, जैसे एक पेपर हो गया, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया 3 घंटे का पेपर, लेकिन कुछ जो मान लीजिए कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस बनाने हैं, तो वो आपने 2 घंटे में किया, तो आपको रोज करना है। और कौन कौन से टॉपिक को इस बात इसमें ज्यादा ध्यान देना है, उसमें मैंने कुछ टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये बहुत आसान है और इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मतलब आप आराम से बना सकते हैं और 10 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने वाली बात यही है कि आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है, कैलकुलेशन पार्ट से बच्चे थोड़ा डरते हैं, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको 10 मार्क का 10 मार्क पूरा दिलाने वाला है। सो पहला चैप्टर हो गया आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आजकल बोर्ड में ये देखा जा रहा है कि वो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कोन और सिलेंडर को दोनों को मिला दिया, फिर उनका सरफेस एरिया पूछा, या कोन सिलेंडर और हेमिस्फीयर को मिला दिया, उनका सरफेस एरिया पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है, जब भी आप पास्ट ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल जो है वो भी बहुत आसान होते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब जो आएंगे सवाल आपको, और एलिवेशन। तो ये दूसरा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इजीली बनने वाले हैं। कई बार बच्चों को यूनिट्स मतलब जो वैल्यूज होती है साइन थीटा कॉस थीटा कि वो याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लाइक दी एंटायर टेबल। सो कोई टिप है उसको याद करने की? वो तो जो कुछ एंगल्स जो है उनको हम लोग लविंग एंगल बोलते हैं। वो जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बच्चों को पता भी होगा कि साइन कॉस और टैन का जो है आप कैसे उसको करते हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो फर्स्ट कॉलम में साइन के सामने आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। साइन वाले रो में 0 के सामने नीचे 0 लिखिए, 30 के नीचे 1 लिखिए, 45 के नीचे 2 लिखिए, 60 के नीचे 3 लिखिए और 90 के नीचे 4 लिखिए। और ये सारे नंबर्स को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करके आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो स्क्वायर रूट तो 0 डिवाइडेड बाई 4 0 होता है, उसका स्क्वायर रूट 0 ही आने वाला है। 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 1/2 आएगा। सो ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। उसी तरह से जो 45 डिग्री है वो 2/4 है, जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा वो 1/√2। उसी तरह जो आपका साइन 60 डिग्री है वो 3/4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 दैट विल बी √3/2। और साइन 90 डिग्री जो है वो आपका 4/4 1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका 0 से लेकर के 90 तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आपको लेफ्ट टू राइट आपका साइन का मिल गया। कॉस के लिए क्या करना है आपको, इन्हीं वैल्यूज को जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको शुरू में लिखिए, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, आपको कॉस का वैल्यू मिल गया। मीन्स कहने का मतलब कि साइन का वैल्यू जो है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का 1। सो अभी आप जब कॉस के लिए स्टार्ट करेंगे तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। इस तरह से आसान हो गया। उसके बाद tan जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये 2 पता चल गया, तीसरा निकाल लीजिए। उसके बाद साइन का रिवर्स उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल, कोसेकेंट। कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड, वो निकाल सकते हैं। कॉट का निकालना है तो tan का रेसिप्रोकल कॉट हो गया। तो इस तरीके से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाले। यही एंगल पूछे जाएंगे। अदरवाइज अगर दूसरा एंगल पूछता है तो उसके लिए उनको टेबल देना पड़ेगा, या कहीं शुरू में लिखा रहेगा ये tan 35 डिग्री का वैल्यू ये होता है, वो दिया रहेगा। अदरवाइज ये इन्हीं एंगल्स में से पूछा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री के जो आइडेंटिटीज हैं उनको याद रखना है, जो आइडेंटिटीज है उनको याद रखना है ताकि वो काम आएंगे वहां पर। और उसके बाद हमारा ये बच्चों को ये सलाह है कि ये तीसरा जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करें। पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करें। इसमें भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, फाइंडिंग रूट्स वाले होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के नेचर
के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, तो आसान से बन जाएंगे ये भी। ये तीन चैप्टर हो गए। चौथा चैप्टर जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आसान क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही, उनके फॉर्मूला आपको जो मीन मीडियन मोड के जो फॉर्मूला है आपको याद रखने हैं। और याद भी रखने की जरूरत नहीं है, जब बार बार एक ही मोड के आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे, मीडियन के आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे और मीन के आप 5 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। मीन में एज्यूम मीन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको जरा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर में बताऊं, और प्रोबेबिलिटी में कुछ खास क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं या तो डाइस वाले क्वेश्चन आते हैं या क्वाइन वाले क्वेश्चन आएंगे, प्लेइंग कार्ड्स वाले आएंगे, नहीं तो डेज वाले कभी कभी आते हैं। तो ये आसान होंगे, बहुत आसान होंगे ये भी। तो इन सब टॉपिक्स में स्कोर करना बहुत इजी है। पांचवा चैप्टर हम सजेस्ट करेंगे ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। अगर ये 5 अगर टॉपिक पे अच्छी तरह से कमांड कर लिया तो मान के चलिए कि 75 to 80% आपने क्वेश्चन कर दिया। 80% क्वेश्चन आपने कर लिया, कहने का मतलब कि यू कैन स्कोर अराउंड 65 and 70 आउट ऑफ 80 इजीली। करेक्ट। सो इन टॉपिक पर जरा अच्छी तरह से ध्यान दे दें बच्चे। और कुछ आपकी तरफ से पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, आई थिंक काफी डिटेल में आपने एक्सप्लेन करा है कि कौन सी यूनिट से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में हाउ डू वी हैव टू राइट। ये जो भी टिप्स सर ने शेयर करी है हम उनको अपने एक पोस्ट बनाकर अपनी प्रोफाइल में भी डालेंगे, तो आप 1-2 दिन बाद गुरुक्यू का हैंडल चेक कर सकते हैं। वो सारे टिप्स हम वहां पर वील पुट ऑल दोस टिप्स देयर। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एक नॉर्मल टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट अगर हम लेके चलते हैं तो अगर सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं 1 मार्क के, तो यहां हम एवरेज अगर 2 मिनट भी एक क्वेश्चन के ऊपर देते हैं तो कितने मिनट्स हो जाएंगे? 40 मिनट्स। 40। ठीक है। सेक्शन बी में जो है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं 2 मार्क्स के। सो अगर हम यहां पर एक क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट्स टाइम देते हैं तो 5 या 25 कितने मिनट्स हो जाएंगे? 25 मिनट्स। उसके बाद सेक्शन सी है जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। अगर इन क्वेश्चंस में हम 7 मिनट दे देते हैं पर क्वेश्चन तो कितने टाइम हो जाएंगे? 42 मिनट्स। लिखते चलिए। उसके बाद जो है सेक्शन डी है। सेक्शन डी में हमको 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। तो ये सबसे बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें अगर हम एक क्वेश्चन को 10 मिनट्स देते हैं तो कितने मिनट्स हो जाएंगे? 40 मिनट्स। सेक्शन ई जो होता है उसमें अपने को 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं 4 मार्क्स के। यहां पर अगर हम 8 मार्क्स दे देते हैं पर क्वेश्चन तो 8 3 जा 24। जोड़िए कितना हो गया टोटल? मैंने जोड़ा है टोटल 171 मिनट्स होते हैं। 171। दिस इज द मैक्सिमम टाइम इट विल टेक। बट ये भी बताता हूं कि ये आपको जो जो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, नहीं 1 मार्क्स वाले जो 20 क्वेश्चन हैं हमने उसको 2 मिनट दिया है, 1 मिनट में भी बन जाएंगे, 1.5 मिनट बन जाएंगे। यहाँ जो हमने आपको एक क्वेश्चन के ऊपर 10 मिनट टाइम दिया है वो हो सकता है 7-8 मिनट बन जाएंगे, लेकिन हमने मैक्सिमम टाइम दिया है तो भी आपको 9 मिनट्स टाइम सेव हो रहे हैं। करेक्ट। सो ऑन एन एवरेज 160 to 170 मिनट्स के बीच में आपका हर बच्चे का हो जाएगा। और तो एक चीज ये भी अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और अदर क्वेश्चन पेपर्स, तो उस टाइम पर वो ये टाइम लिमिट ध्यान में रखकर अगर प्रैक्टिस करेंगे देन इट विल बी इजियर फॉर देम ड्यूरिंग द एग्जाम। करेक्ट। और दूसरी बात ये रखना है कि एक एग्जाम होता है,
हम जैसा सोच के जाते हैं वैसा ही 100% होगा, दिस इज नॉट गारंटेड। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसीलिए मैंने बोला कि एग्जाम वाले दिन आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। मतलब हमने आपको अपने को बोलना है कि हमने अच्छी तैयारी की है, अच्छी प्रिपरेशन करना है। नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय द पेपर। आप अगर आप जैसे मैथ को आप इंजॉय करते हैं तो अच्छा स्कोर भी करते हैं। मैच खेलते समय अगर आप इंजॉय करते हैं तो अच्छा स्कोर भी करते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर में मैच खेलते हैं तो आपको आउट होने का ज्यादा चांस रहता है। तो हमको प्रेशर नहीं लेना है। कभी कभी क्या होगा कि हमने देखा भाई 2 घंटे में अभी हमारा 2 सेक्शन बाकी रह गया है और हमने अभी तक 2 घंटे पूरे हो गए हैं, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपना पेशेंस, कामनेस मेंटेन रखिए और थोड़ा रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करिए। घबराना नहीं है। अब उस समय आपकी ये स्ट्रेटेजी होगी कि अभी 1 घंटा मेरे पास टाइम बचा है, तो 1 घंटे टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इट विल नॉट बी पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन 1 आवर, कि मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके छूटे हुए हैं किसी वजह से, तो ऐसा गारंटी नहीं है कि आप सारा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आप मैक्सिमम नंबर कर दीजिए। 2-4 नंबर के छूट भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी। पूरा पेपर नहीं खराब करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर। नर्वस नहीं होना है। मान के चलना है कि एग्जाम्स है, ऐसा होता है, इट हैपेंस एंड इट हैपेंस विद एवरीबॉडी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सबके साथ एग्जाम देने की बात ही, चाहे कैसा भी एग्जाम हुआ वो भूल जाना चाहिए कि कैसा हुआ है। बिकॉज अगर आप वो ध्यान रखोगे कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ है तो उसके चक्कर में नेक्स्ट एग्जाम पर भी इफेक्ट आएगा। ये पॉइंट मैं ऐड करने वाला था। जब भी आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम दे के आने के बाद में वो पेपर आपको रख देने का। अभी दोस्तों के साथ या फैमिली में ये डिस्कस नहीं करने का कितना मार्क्स आने वाला है, कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बैठने का। बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, व्हाटएवर यू हैव डन वी हैव डन। सो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अभी वो पेपर देख रहा नहीं है अभी, तो आप क्या है, फिर जितना जल्दी हो सके आप सेकेंड पेपर के मोड में आ जाइए, सेकेंड पेपर के प्रिपरेशन के मोड में आ जाइए। और जो पहला पेपर, जो आपने आज का पेपर दिया, उसके 2 घंटे के बाद आपको उस मोड में आ जाना चाहिए। आइडियली 2 घंटे के बाद आपको दूसरा पेपर का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 1 बजे पेपर खत्म हुआ, घर आए, खाना पीना खाए, 3-3:30 बजे आपको दूसरा पेपर चालू करना चाहिए या 4 बजे कर देना चाहिए। थोड़ा फ्रेश होना है तो हो लीजिए, लेकिन फ्रेश होना अलग चीज है, अपने आप को एंटरटेन करना अलग चीज है, और ये लास्ट पेपर को डिस्कस करना वो अलग चीज है। तो वो नहीं डिस्कस करना है। यू कैन एंटरटेन योरसेल्फ, यू कैन लिसन गुड म्यूजिक या जो भी आपका मन करता है थोड़ा बहुत करके, फिर अगले पेपर की तैयारी में जुट जाइए उसी एनर्जी से। तो ये स्ट्रेटेजी रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम है जैसे बाकी सब एग्जाम है, वैसे तो लाइफ में तो हर रोज एग्जाम आदमी देता है, तो इसको भी ऐसे ही समझने का। ये भी एक पेपर है। ये इस तरह के बहुत सारे हमने पेपर ऑलरेडी दे दिए हैं, ये कोई नया नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं। तो जैसे मैंने बार बार एक मैच से कंपेयर करा एग्जाम को, सो मैच में भी नो कि जिस माइंडसेट से प्लेयर उतरता है फील्ड पर, उससे बहुत ज्यादा उसका मैच इन्फ्लुएंस होता है। सो द सेम वे आप जिस माइंडसेट से पेपर स्टार्ट करोगे, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर रिजल्ट और द वे जैसे आप एग्जाम राइट करोगे। सो पॉजिटिव माइंडसेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हो रहा हो आपके आसपास या जो भी आपको लगता है आपने कम ज्यादा प्रिपरेशन करी है, गोइंग फॉरवर्ड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। और दूसरे, आपका नेबरहुड में या आपके जो दोस्त फ्रेंड्स हैं कुछ बात करते रहते हैं, या वो सब आपको, उससे आपको अफेक्ट नहीं होना है। आपका पेपर है, आपको अपने हिसाब से देना है ना। कोई बोलेगा हमने तो सब कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, करने दीजिए उनको, आप अपना करिए। और आदमी, धोनी ने एक बार बोला था कि ग्राउंड पे जीतने से पहले आदमी यहाँ जीतता है। करेक्ट, यस सर। तो यहाँ आपको बस ये और प्रोसेस को एंजॉय करिए। जैसे 3 घंटे का मैंने बताया आपको, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट रिजल्ट एट ऑल, यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रोसेस। ये सवाल है कैसे करना है, इस 3 घंटे के टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। एकदम काम कॉन्फिडेंट माइंड से पेशेंटली उसको करते जाइए। अगर आप करेंगे तो
पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ एक दो छूट भी गया तो उसके लिए ज्यादा परवाह नहीं करने का, इससे पार्ट ऑफ एग्जाम। लेकिन इसी माइंडसेट के साथ जाने का, माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। आई थिंक जो भी सर ने शेयर करा है अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, जो भी उन्होंने टिप्स दिए हैं वो नॉट ओनली फॉर हिज सब्जेक्ट, आई थिंक दे आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स को प्लीज वो सारी चीजें अपने सारे एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखनी चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। It will be beneficial for all subjects. Correct. Yes, sir. So thank you so much for your time. It was a very insightful session. जैसा कि मैंने बताया कि जो भी सर ने टिप्स दिए हैं, अपार्ट फ्रॉम मैथ्स ऑल्सो ऑल द टिप्स दैट ही हैज गिवन फॉर द प्रिपरेशन एंड द माइंडसेट, हम वो अपने हैंडल पर 2 दिन में पोस्ट कर देंगे। तो जिसने भी मिस कराया, जिसको भी रिवाइज करना है, वो या तो ये वीडियो दोबारा से देख सकते हैं जो मैं पोस्ट करूंगी, नहीं तो उस पोस्ट पर जाकर यू कैन चेक द टिप्स। थैंक यू सो मच। Yeah. Thank you so much, sir. Yeah.